Assalamu alaikum. Today we will talk about measurement of memory. The measurement of memory is in fact the measurement of retention. Our observations and experiences get stored in the form of traces. The storage of the thought, retention or inclination in the mind is called psychological traces. Because of symbolic perception, our physiological system bears these traces that facilitate retrieval. मेमोरी मेजर करने के लिए जनरली 2 मेथड्स हैं जो कि अडॉप्ट किए गए हैं, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड. The following techniques are employed in quantitative method to measure memory. These are also called 4 R's. First one is recall method, second is recognition method, third is relearning method, it is also called saving method, and fourth one is rearrangement method. Now one by one हम इन चारों methods को study करेंगे. 4 R's: recall, recognition, relearning and rearrangement. Recall method is the first method. Recall means calling to mind a material in the same way as it was learned, or it means repeating the material that we learned. It does not necessarily require visual or auditory material. Repeating the material that we learned in the past, आपने just उसको repeat करना होगा. आपको किसी किस्म की यहाँ पे किसी visual और auditory material की ज़रूरत नहीं है. For example, if we memorize a lesson, poem, song, lyrics or tables, we remember it again next or 4th day. The amount of material we are able to remember is called recall. आप जितना याद कर सकते हो उसको recall कर सकते हो, वही हमारा कैलकुलेट होगा कि इतनी मेमोरी जो है वो रिटेन्ड है. एबिंगहॉस ने सबसे पहले मेमोरी मेजरमेंट के लिए रिकॉल मेथड को यूज़ किया था. मेमोरी मेजरमेंट में इनकी बहुत सारी रिसर्च है. रिकॉल मेथड इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेजर मोटर स्किल्स. द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू रिपीट अ स्किल आफ्टर हैविंग लर्नड इट is in itself a proof of great skill. Skills are generally sooner learned and are forgotten less often than verbal material. प्रैक्टिकली आप जो काम करते हो या जो स्किल्स हैं वो जल्दी आपको याद हो जाते हैं और देर से भूलते हैं. इतनी जल्दी आप उसको भूल नहीं सकते, लेकिन वर्बल मटीरियल जो है वो जल्दी भूल जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल राइडिंग अ बाइसिकल जो एक स्किल है, तो आप इतनी जल्दी बाइसिकल राइडिंग नहीं भूलते. सिमिलरली टाइपिंग, निटिंग और एम्ब्रॉयडरी के जो स्किल्स हैं ये भी आप रिकॉल कर सकते हो ज़्यादा ईजीली एज़ कम्पेयर टू वर्बल मटीरियल. इवन इफ देयर बी अ टाइम गैप ऑफ ईयर्स, वर्बल मटीरियल कैन बी मेजर्ड बाय 2 methods. First is aided recall and second one is unaided recall. Aided recall when subject is given a cue. Aid का मतलब है cue और signal. Aided recall means when subject is given a cue. आप उसको help करोगे recall करने में. And unaided recall means without hint or without cue. आपने कोई help नहीं करनी. Without hint एक person जो है उसने learned material recall करना होगा. Now aided recall and unaided recall is further divided into 2 subtypes. Method of paired association and method of anticipation. Aided recall को further 2 subtypes में divide किया गया है. Method of paired association and method of anticipation. Paired association में क्या होगा? Material is in the form of pairs, word number, word figure. Pairs की फॉर्म में मटीरियल गिवन होगा और इंडिविजुअल को उन पेयर्स की एसोसिएशन के थ्रू मटीरियल को रिकॉल करना होगा. फॉर एग्जांपल वर्ड फिगर में आपके पास वर्ड है और उसके सामने एक फिगर होगी और वर्ड और फिगर को आप आपस में एसोसिएट करते हो. जब आपको वर्ड दिखाया जाएगा तो आप उसके फिगर को रिकॉल कर सकते हो, या जब आपको फिगर दिखाई जाएगी तो आप उसका वर्ड रिकॉल कर सकोगे. इस तरह से एसोसिएशन के थ्रू आपकी क्वांटिटेटिवली जो है मेमोरी मेजर होगी. ये मेथड जो है इट इज़ यूज्ड इन प्राइमरी क्लास विद किड्स. इसके बाद मेथड ऑफ एंटिसिपेशन है. मटीरियल इज़ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. लिस्ट की फॉर्म में मटीरियल को हम अरेंज कर लेते हैं और फिर आप उसको लर्न करते हो.
जिस तरह से हमने मेजरमेंट ऑफ मेमोरी का एक्सपेरिमेंट किया था, एबिंगहाउस एक्सपेरिमेंट, जिसमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स आपने याद की और फिर आपने उसको रिकॉल किया। एक एक्सपोजर बोर्ड था जिसमें एक विंडो थी, उसमें आपको वो वर्ड दिखाया जाता था, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा जाता था। तो वो जो आपको क्यू था, उस क्यू की हेल्प से आप मटेरियल को रिकॉल कर सकते थे। उस लिस्ट की फॉर्म में जितना भी मटेरियल था, जो भी वर्ड्स थे, उनको रिकॉल करना जो था, बेसिकली इट इज़ मेथड ऑफ एंटिसिपेशन। Second type is unaided recall. It is also divided into two types, serial recall and free recall. Serial recall में जैसे कि नाम से आपको समझ आनी चाहिए, serial का मतलब है recalling the material in the same order. Order is maintained serial wise. इसमें जो भी आपने मटेरियल याद किया है उसको आपने सीरियल में ही रिकॉल करना है, सीक्वेंस को आपने मेंटेन करना है, स्टेप्स को आपने मेंटेन करना है। इसमें आपने उन स्टेप्स को, उनके सीक्वेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिस सीक्वेंस में आपने उसको रिमेंबर किया है, उसी सीक्वेंस में उस लर्न मटेरियल को आपने रिकॉल करना होगा। कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, स्टेप्स हो सकते हैं, किसी भी फिनोमिना के कुछ स्टेप्स हो सकते हैं, कोई इवेंट्स हो सकते हैं, वो जिस सीरीज़ में है उसी सीक्वेंस में आपने रिकॉल करने होंगे। नेक्स्ट इज़ फ्री रिकॉल। फ्री रिकॉल में इंडिविजुअल इज़ फ्री टू रिकॉल विदाउट मेंटेनिंग ऑर्डर। आपने ऑर्डर मेंटेन नहीं करना, फ्रीली आप उसको किसी भी तरह से आगे पीछे रिकॉल कर सकते हो। लेकिन सीरियल रिकॉल में आपने ऑर्डर को मेंटेन रखना है और ये विदाउट हिंट और विदाउट क्यू रिकॉल होगा। इसमें आपकी किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की जाएगी। इस तरह से रिकॉल मेथड से आपकी क्वांटिटेटिवली मेमोरी मेजरमेंट हो जाती है कि आपके मेमोरी में कितनी इन्फॉर्मेशन रिटेन्ड रह चुकी है, उसको हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं। If the subject is able to recall the whole material, it is called total recall. अगर एक सब्जेक्ट टोटल सारे का सारा रिकॉल कर लेता है मटेरियल, इसको टोटल रिकॉल कहेंगे। And if the individual recalls only a part of the material, it is termed partial recall. और अगर कुछ मटेरियल रिकॉल करता है सब्जेक्ट, तो उसको हम partial recall कहेंगे। मोस्टली जो सबसे ज़्यादा मेथड यूज़ होता है मेमोरी मेजर करने के लिए, वो रिकॉल मेथड ही है। इसके अलावा बाकी मेथड्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पे हम यूज़ करते हैं। सो सेकेंड मेथड इज़ रिकग्निशन मेथड। In recognition method, new unfamiliar material is mixed with the already learned material and the subject is told to isolate what he has learned. रिकग्निशन में एक्चुअली हम रिकग्नाइज कराते हैं मटेरियल जो एक पर्सन ने लर्न किया है, उसको रिकॉल कराना। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें हम कनेक्शन बना लेते हैं। आपने पहले से आपको पता है, आपने जो चीज़ पढ़ी है, जो मटेरियल आपको याद है, हम वो ऑप्शंस में रखेंगे और बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं, जो आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचने में डिस्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वॉज द फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी एस्टैब्लिश्ड। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस आ जाती हैं, 1876, 1879, 1897, 1890। अगर आप इससे फेमिलियर हैं तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हो। तो रिकग्निशन मेथड में हम आपके मेमोरी को मैच करके मेजर करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो MCQs की हेल्प से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गेस करके भी करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। तो इस गेसिंग के चांस से बचने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करा देते हैं ताकि चांस ऑफ गेसिंग को कम से कम किया जा सके। सो इसका जो ड्रॉबैक है कि सब्जेक्ट कैन गेस द राइट आंसर, तो वहाँ के उसके लिए हम किस तरह से डिस्करेज करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करा देंगे कि जब आप करेक्ट आंसर नहीं दोगे, इनकरेक्ट आंसर पे आपके करेक्ट आंसर में से भी क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वहाँ से डिडक्शन कर ली जाएगी। 0.5 मार्क्स हम वहाँ से डिड्यूस करेंगे। इस तरह से नेगेटिव मार्किंग के कॉन्सेप्ट की वजह से जो इंडिविजुअल है वो राइट आंसर जो कि उसे याद है, सिर्फ वही आंसर वो एनसर्कल करेगा। पुलिस फोर्स भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए रिकग्निशन मेथड यूज़ करती है, लेकिन साइंटिफिक स्टडी के लिए ये मेथड जो है यूज़फुल नहीं है। नेक्स्ट मेथड है रीलर्निंग और सेमिंग मेथड। द मटेरियल वंस लर्नड इज अगेन प्रेजेंटेड फॉर लर्निंग। द टाइम एंड एफर्ट पुट इनटू लर्निंग फर्स्ट टाइम इज कंपेयर्ड विद द टाइम एंड एफर्ट एक्सपेंडेड सेकेंड टाइम। Then the difference between them is called the score of memory. It can be measured by the formula. इसमें आप इस तरह से मेजर कर सकते हो, टाइम टेकन टू लर्न फर्स्ट टाइम लर्न करने में जितना टाइम जो है एक इंडिविजुअल ने यूटिलाइज़ किया है, उसमें से आप डिवाइड कर देते हो टाइम टेकन टू लर्न सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम आपने एक कोई पैसेज याद किया, फिर उसके बाद आपको
कुछ टाइम की ब्रेक दी जाएगी, उसके बाद आपको दोबारा से लर्न करने के लिए वही पैसेज दिया जाएगा। लेट्स सपोज फर्स्ट टाइम आपने 40 मिनट्स में जो है वो याद किया, उसके बाद सेकंड ट्रायल में आपने 30 मिनट्स में जो है उसको दोबारा से रीलर्न किया। तो यहाँ पे जो टाइम आपने लिया है फॉर टू लर्न फर्स्ट टाइम, उससे आप डिवाइड करें। फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट ट्रायल में जो आपका टाइम था उसमें से आप सेकंड टाइम को माइनस करें और फिर डिवाइड कीजिए फर्स्ट टाइम आपने जो टोटल टाइम लिया था। तो इसको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाता है कि कितना % टाइम जो है वो आपने सेव किया है। इट इज़ सेविंग मेथड। अब ये वो टाइम है कि जिसका मटीरियल ऑलरेडी आपकी मेमोरी में पहले से ही प्रेजेंट था, इस वजह से ये जो टाइम है आपने सेव किया है, क्योंकि इतने % मटीरियल आपकी मेमोरी में पहले से ही स्टोर्ड था, जो कि आपने फर्स्ट ट्रायल में टाइम इन्वेस्ट किया था उसको याद करने में, वो चीज़ आपके माइंड में पहले से स्टोर्ड है। और वो कितना % है, वो 25% टाइम आपने लेस कर दिया है, इतना टाइम सेव हुआ है, इस वजह से ये मटेरियल पहले से आपके पास स्टोर्ड था, इस वजह से ये टाइम जो है वो सेव हो गया है। एबिंगस ने इस मेथड को भी काफ़ी जगह पे अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया है। दिस मेथड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज सेविंग मेथड, टाइम सेविंग मेथड भी इसको कहा जाता है। फोर्थ है रीअरेंजमेंट मेथड। रीअरेंजमेंट में द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू लर्न अ स्पेसिफिकली अरेंज मटेरियल, लेटर ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल इज चेंज्ड एंड द सब्जेक्ट इज टोल्ड टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल अरेंजमेंट। अब यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ मिस्टेक्स एक इंडिविजुअल करेगा उस मटेरियल को रीअरेंज करने में, पिक्चर्स हो सकती हैं, पजल्स हो सकते हैं, जिक्सा पजल्स हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपको वो पिक्चर दिखाई जाएगी, नेक्स्ट टाइम आपको फिर उस पिक्चर को अरेंज करना होगा। तो आप जितनी मेमोरी आपने स्टोर की थी उस पिक्चर को रिकग्नाइज करके आपने उसको याद कर लिया, देखा आपने उस पिक्चर को, उसको आपने याद किया, अब आपने उसको रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे अब आप जितनी मिस्टेक्स करोगे वो एक्चुअली आपका फॉरगॉटन मटेरियल है और आपकी जो मिस्टेक्स होंगी उसमें ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट जो है वो आपने भुला दिया है, और बाकी जितनी भी करेक्टली आपने उसको अरेंज किया वो आपका मेमोरी स्टोर्ड था। पिक्चर स्टोरीज में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है, और जितनी ज़्यादा आपकी रिटेंशन होगी, जितनी अच्छी रिटेंशन होगी, उतनी अच्छी आप उस पिक्चर को अरेंज कर सकोगे। So it was all about measurement of memory. Quantitative method used to measure memory. 4 R's हैं यहाँ पे, 4 R's: recall, relearn. रिकॉल में आपके पास एडेड रिकॉल है जिसमें मेथड ऑफ पेयर्ड एसोसिएशन, मेथड ऑफ एंटिसिपेशन, देन अनएडेड रिकॉल में आपके पास सीरियल रिकॉल है एंड फ्री रिकॉल है। उसके बाद रिकग्निशन मेथड जिसमें आप रिकग्नाइज करते हो, और यहाँ पे चांस ऑफ गेसिंग को किस तरह से आपने एलिमिनेट किया है, आपने करेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स अवॉर्ड करने हैं और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए आपने नेगेटिव मार्किंग रख ली। उसके बाद लर्निंग मेथड है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइम सेविंग मेथड। इसमें फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम का जो टाइम इन्वेस्ट किया जाता है लर्निंग में उसको माइनस करके डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टाइम जो था आपने लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में आप देखते हैं कि कितने % टाइम जो है वो आपने सेव किया है। उसके बाद रीअरेंजमेंट मेथड जिसमें आप पिक्चर्स को अरेंज करते हो, और ये भी एक मेथड है रिटेंशन ऑफ मेमोरी को मेजर करने का। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Stay safe. Allah Hafiz.